Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss some of the prominent current affairs. So without wasting time, let's get started. So the first and foremost is, recently our Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Sai Hari Global Convention Center in Andhra Pradesh. The idea behind the inauguration of the Sai Hari Global Convention Center is to promote the vision of cultural exchange, spirituality and global harmony, right? So this point you have to remember, that where is the Sai Hari Global Convention Center inaugurated? So it is inaugurated in the state called as Andhra Pradesh. So this you can see, that the inauguration ceremony is taking place. This is the Sai Hari Global Convention Center. Now let's quickly discuss some of the important points related to Andhra Pradesh also, right? Because Andhra Pradesh is always in the news. So the first and foremost is that if anybody asks you that which is the first state in India which was formed on the basis of the language, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट इंडिया का कौन सा था, तो 1953 में it was आंध्र प्रदेश, right? It was established on the basis of language or the linguistic basis. Right now Andhra Pradesh is in news because after 2014 it got separated. तेलंगाना गॉट सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया है एंड दे वांट देयर न्यू कैपिटल टू बी सिचुएटेड इन विशाखापट्टनम, राइट? तो अभी ये न्यूज़ में चल रहा है, ऑल्दो प्रेजेंटली देयर कैपिटल इज अमरावती, बट दे वांट देयर कैपिटल टू बी शिफ्टेड इन विशाखापट्टनम. तो ये भी आंध्र प्रदेश न्यूज़ में है, ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इसे एक तरीके से एग्रीमेंट नहीं दिया है, राइट? बट आंध्र प्रदेश इस चीज़ के लिए भी न्यूज़ में है. नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट आंध्र प्रदेश इज, इफ एनीबडी आस्क यू दैट वेयर इज इंडियाज फर्स्ट man-made port situated, man-made port situated, so again it is in Visakhapatnam, that is Vizag, Andhra Pradesh, right? So please write all these points. तो साई हरी ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर तो याद ही रखना है, प्लस ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये भी याद रखना है, बिकॉज दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर जियो पॉलिटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी G20 के बाद है, वो है आपका SCO, दैट इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज इट. सी इन 2001 एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO. दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज established by the efforts of two countries named as China and Russia, right? And idea of this organization was to motivate related to social, political, economical and military ties. This organization got the breakthrough in 2017 when two other countries such as Pakistan and India became its member. तो आज के समय में SCO में 8 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी एक मेंबर है, और इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं लाइक उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, दे आर ऑल्सो द मेंबर. बट अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, रिसेंटली इन जुलाई 2023 एक इसमें नया मेंबर ऐड हुआ है, दैट इज़ ईरान. सो नाउ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द SCO इंक्रीज्ड टू 9 मेंबर्स. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितने मेंबर हैं SCO में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ 9 एंड द लेटेस्ट मेंबर इज ईरान, जिसकी कैपिटल क्या है, तेहरान, right? So Prime Minister Narendra Modi congratulate the Iranian President Ebrahim Raisi and the people of Iran for this significant occasion, because they are now become the member of SCO, that is Shanghai Cooperation Organization, right? In which year this organization was established? This was established in the year 2001. So by this creative you can remember the SCO, क्योंकि अभी इसकी SCO काउंसिल ऑफ द स्टेट समिट हुई है. हालांकि ये जो समिट हुई है वर्चुअली हुई है, राइट? वर्चुअल मोड पे ये समिट आपकी होस्ट हुई है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड. अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड इज रिसेंटली इनिशिएटेड बाय आर बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब ये क्या है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड? देखो, इंडिया में 2014 में एक स्कीम आई थी जिसका नाम था जन धन योजना, राइट? जन धन योजना.
And the idea of this Jandan Yojana scheme was to provide bank balance, मतलब बैंक अकाउंट इन ज़ीरो बैलेंस, आप ज़ीरो बैलेंस में भी बैंक अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो. और उसका जो मेन एजेंडा था वो ये था टू इंक्लूड एवरीवन इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन. अब क्वेश्चन आता है कि सर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन सिंपली डिफाइंड एज when we encourage all the people of different strata to avail the banking services, ज़्यादा से ज़्यादा population को banking services के साथ जोड़ा जाए. अभी भी आप देखो रूरल इंडिया में people are not aware about the banking services, people are not aware about the initiative provided by our banks. So idea of this financial inclusion is to integrate entire population in one system and also this will boost our economy. तो ये जो अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड है इसका एम भी यही है. इसका एम भी क्या है? दिस इज बेसिकली द इनोवेटिव टूल दैट एम टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट फॉर असेसिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय कैप्चरिंग रिलेवेंट पैरामीटर्स. राइट, सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, तो आरबीआई कुछ भी स्कीम लेके आता है, कोई भी काम करता है, वो न्यूज़ में होता है बिकॉज आपको पता है आरबीआई इज द टॉप नॉच बैंक ऑफ इंडिया. अब इसी के साथ थोड़ी सी बात आरबीआई की भी कर लेते हैं जो कि हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड? सो आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन. देयर इज वन कमीशन नोन एज हिल्टन यंग कमीशन. तो हिल्टन यंग की कमीशन रिकमेंडेशन के बाद हमारे इंडिया में आरबीआई बना. हालांकि उस टाइम पर इसे फेडरल बैंक बोलते थे, नॉट द रिजर्व बैंक. इट गॉट द नेम रिजर्व बैंक इन द ईयर 1949 when it got nationalized and the present headquarter of RBI is in Mumbai and the present governor is Mr. Shaktikant Das. Shaktikant Das. Now quickly see what are the four important functions of RBI. The first it is a lender of the last resort. RBI is called as the lender of the last resort. कोई भी हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जब कुछ नहीं बचता तो लास्ट रिजॉर्ट में आपका आरबीआई काम का आता है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट इज़ अ कस्टोडियन ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज. ये क्वेश्चन पता है जब भी एग्जाम में आता है लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री मार के आ जाते हैं ऑप्शन में. सो डू रिमेंबर दैट अगर एग्जाम में क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड एज अ कस्टोडियन ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज, इट इज़ आरबीआई नॉट फाइनेंस मिनिस्ट्री. राइट. द थर्ड इंपॉर्टेंट इट इज़ द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को फर्दर किसी मनी की रिक्वायर्ड होती है तो आरबीआई इज ऑलवेज अ ऑप्शन. So bankers to the government is also called as RBI, and the other main function of RBI is to issue new bank notes. Although one rupee note is not published by RBI, otherwise all other notes are published by RBI. So if anybody asks you that who issues the bank notes, again the answer will be Reserve Bank of India. Alright, so I hope you're now able to connect what is Antradrishti dashboard and the basic functions of the RBI. Right? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. अभी एक कंट्री है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, दैट इज़ न्यूजीलैंड. बिकॉज न्यूजीलैंड दुनिया की पहली कंट्री बनी है जिसने बैन कर दिया है क्या? प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग. राइट. सो न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज़ डिसाइडेड टू बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग. तो न्यूजीलैंड हैज़ टेकन दिस मोमेंटम स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट by becoming the first country to implement a complete ban on the thin plastic bags commonly used in supermarket for the fruit vegetable purchase. Right, this point you have to remember. हालांकि न्यूजीलैंड अभी जनवरी में भी न्यूज़ में था, बहुत ही इनोवेटिव डिसीजन लिया है इन्होंने डिसाइड करा है दैट बाय 2025 दे आर गोइंग टू बैन स्मोकिंग ऑल्सो. सो न्यूजीलैंड पहली कंट्री बनने वाला है दुनिया का जिसने स्मोकिंग को बैन किया है, एंड बाय 2025 they are going to ban complete smoking in their country. This point also you have to remember. Now quickly see the geography of New Zealand. So this is a island country called as New Zealand situated in the Pacific Ocean. अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के आपका इधर दैट इज साउथ ईस्ट में आपका न्यूजीलैंड लाया करता है. राइट. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ द न्यूजीलैंड, इट इज वेलिंगटन. Wellington is the capital of the New Zealand. Another important fact you have to remember about New Zealand is the Southern Alps
एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है सदर्न एल्प्स। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दैट सदर्न एल्प्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो इट इज अगेन इन न्यूजीलैंड। So please write all these points, remember all these points. The capital is Wellington, Southern Alps is also situated in New Zealand, right? And recently they have decided to completely ban the plastic bags, and also by 2025 they are deciding to ban the use of the smoking thing also, right? Now let's move forward, आगे चलते हैं. Now this is the last current affair. Canada, the another country, Canada has launched the e-digital nomad strategy for foreign workers. एक वर्ल्ड में कंट्री है, बेसिकली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है कनाडा, और कनाडा ने डिसाइड करा है एक स्ट्रैटेजी जो कि डिजिटल वर्कर्स को ये अट्रैक्ट कर सके, मतलब बेसिकली वो वर्कर्स जो आईटी सेक्टर्स वगैरह में काम करते हैं, राइट? सो दिस थिंग कनाडा हैज़ लॉन्च वन इम्पॉर्टेंट पोर्टल दैट इज e-digital nomad portal, right? So Canada has take this approach basically because this country is facing the shortage of the skilled worker, particularly in the tech industry. अब टेक इंडस्ट्री में क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज हो गई है आपका स्किल्ड वर्कर की, तो इन्होंने डिसाइड करा है कि एक डिजिटल नोमैड आपका पोर्टल बनाया जाए ताकि जो भी टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं टेक इंडस्ट्री के अक्रॉस द ग्लोब उन्हें ये अट्रैक्ट कर सके, राइट? तो दिस इज अ वेरी इनोवेटिव पोर्टल, right? So you can search it out if you are looking for a job in the tech industry, particularly in Canada, right? So this thing you have to remember. The another thing about Canada is, अगर कुछ हम बेसिक बातें करें कनाडा का, तो कनाडा एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड का जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, राइट? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंट्री विच हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, अगेन कनाडा. इफ आई टॉक अबाउट द करेंसी ऑफ कनाडा, इट इज कैनेडियन डॉलर. कैनेडियन डॉलर इज अ करेंसी ऑफ कनाडा. The second important point is Canada is also called as the wheat basket of North America. North America कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा wheat का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? कनाडा में होता है. So this point also you have to remember. And the important point is 49-degree parallel. 49-degree parallel. This is basically a border line between कनाडा एंड यूएसए. तो ये भी एग्जाम में कई बार आता है कि 49 डिग्री पैरेलल किसे सेपरेट करता है, तो इट सेपरेट्स कनाडा एंड यूएसए. एंड डू राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा. बाय दिस आई विल गेट टू नो दैट यू आर thoroughly study this video or not. Alright, so that's all from my side. Good luck and have a nice day.